नंदाज है ना, नंदाज क्या था, नंदाज में हमने पढ़ा कि नंदाज ये वो फलाना फलाना। उसी टाइम पर आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू कि बिकॉज ऑफ नंदाज वन पर्सन dared not to enter into India, है ना? Yes, sir. Who was that? Alexander. क्या बात है, Alexander. So Alexander is one person. Like most of the books you will find Alexander the Great. ऐसा लिखा मिलेगा ना आपको, Alexander the Great. Like in Indian history you will find two person जिसके नाम क्या कि आपको the Great मिलेगा. In Indian history में आपको दो जन के सामने the Great मिलेगा. One is Ashoka the Great. Another is Akbar the Great. Very good, Janvi. बस क्वेश्चन मार्क हटा देना दोनों, Ashoka the Great and Akbar the Great. ठीक है, these are the two personalities, and when we are doing these two, Ashoka and Akbar, तो आपको खुद पता चल जाएगा why these people were called as great. World history में Alexander is a person who is like उसके नाम के आगे एक suffix है Alexander the Great. तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं Alexander, but before Alexander, was Alexander the first one to invade India? Was Alexander the first one to invade India? क्या Alexander पहला जन था जिसने इंडिया में इन्वेड किया था? Again, like from the western side. If we take Aryans as Indians, because we don't know like what was the original homeland of Aryans, and according to one theory, वो तो इंडिया के थे, Sapta Sindhu region. I hope you remember that. If we take Aryans as Indians, then was Alexander the first invader to India? क्या वो first invader था? No. Answer is no. Before him, there were some invasions. What is the history of all these invasions? आज हम ये पूरा का पूरा क्लियर कर लेंगे, ठीक है? Already आज हमारी थोड़ी लंबी क्लास है, तो most probably we'll finish this topic in today's class itself. आज ही की क्लास में हम टॉपिक भी खत्म कर लेंगे क्योंकि हमारी आज थोड़ी लंबी क्लास है. I hope you must be aware कि timetable has changed a bit, है ना? There is a slight change in timetable. Okay. Sabna is asking something. Sabna, why most of the kingdom have two capitals? Sabna, it's time. India की देखो अगर आपसे कोई पूछे Sabna, capital of India since it's like ancient times से, the capital of India, अगर कोई पूछे capital of India, आपसे कोई पूछे the most important city of India, the city has changed over the period of time, right or wrong Sabna? कहाँ हो Sabna? हाँ ये Sabna है ना? So it's like with time, है ना? एक टाइम पे ये बाद में लाइक मगध का जैसे था ना, आपने देखा राजगीर देन पाटलिपुत्र, है ना सब ना? सो इसलिए वो दो कैपिटल्स लिखी हुई हैं. ओके, सो नाउ व्हेन वी से इन्वेजन्स, most of you must be aware that in India is a country where so many invasions have been there, so many till today आज भी invasions इंडिया में हो रहा है, right or wrong? When I'm saying till today आज भी इंडिया में invasions हो रहा है, right or wrong? illegal infiltration नहीं हो रहा है इंडिया में. You must be knowing, you must be aware, है ना? illegal infiltration हो रहा है इंडिया में. What is that? Why they are coming? है ना? They are having like certain, है ना, कुछ तो target, कुछ तो aim. In ancient times, अभी तो like ये शुभ्रा, in ancient times अभी तो just शुरुआत हुई है ना? The kingdoms are in the making. Shubha, sorry, like no need for sorry, like नेटवर्क इश्यूज मुझे पता है कितने, और अभी तो मॉनसून पीरियड में लाइक ट्रस्ट मी मेरे पास नेटवर्क आधा घंटा पहले आया है. मेरी मॉर्निंग की क्लास के बाद आई वाज नॉट हैविंग नेटवर्क. मैंने अपने फोन से कनेक्ट किया हुआ था. आई वाज नॉट हैविंग माय नेटवर्क. अभी नेटवर्क आया. मैं सोचा था कि आज की क्लास शायद कैंसिल होगी, है ना? मैं ये एज्यूम करके बैठा हुआ था कि टुडे इज
लाइक टुडे आज आई कैन नॉट टेक क्लास टुडे, वो तो लाइक इतने देर मैंने लंच किया है ना, लंच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारी हमारी क्लास का टाइम ही ऐसा है, बिल्कुल लंच का परफेक्ट टाइम है एकदम। तो उसी टाइम पे पता नहीं नेटवर्क को तरस आ गया मेरे ऊपर एंड नेटवर्क आ गया। ओके, सो अभी तो बिल्कुल किंगडम्स दे वर इन देयर इन्फेंसी स्टेज, देयर इज स्टिल नो एम्पायर, अभी तक कोई बड़ा एम्पायर नहीं है, एम्पायर इज इन द मेकिंग, एम्पायर इज इन द मेकिंग, है ना, एम्पायर इज इन द मेकिंग। नंदास की बात है, नंदास से पहले ही, उससे पहले ही स्टार्ट हो गए थे इन्वेजन्स तो। Why these invasions? That means the foreigners, they were much powerful than us. Abhi to they dared to come to India and invade, right or wrong? They were much powerful. If they were much powerful, then why they were so powerful? Try to think. कोई इंडिया में आ रहा है, इंडिया अभी तक तैयार भी नहीं है, किंगडम्स अभी बने भी नहीं है, किंगडम्स आर नॉट येट रेडी, अभी जस्ट एवरीथिंग इज इन द इन्फेंसी स्टेज, एंड यहां से इन्वेजन शुरू हो गए। दैट मींस द पीपल हु आर इन्वेडिंग दे आर वेरी मच पावरफुल देन द इंडियंस, राइट? करेक्ट? यस, यस। व्हाई? आंसर इज यस, बट व्हाई? व्हाई इज, remember, what was the most important thing, because of which that janas changed into janpad and janpad changed into mahajanpad? What was that most important thing? use of iron. Very good साहित्य, आपने पूरा मेरी पूरी स्टोरी खत्म कर दिया आपने तो। वेरी गुड साहित्य, वेरी गुड, बहुत बढ़िया साहित्य। तो बेसिकली इंडिया में आयरन, यूज ऑफ आयरन हुआ था। You after we started using iron, the janas changed to janpad and janpad changed to mahajanpad, है ना, ऐसे कुछ हुआ था। In the western parts, somewhere here, like I cannot show on the screen, इस map के सब, okay, in the western parts, इस जगह पर the use of iron started at an early date than India. What does it mean? What does it mean? Use of iron at an early date. What does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? Use of iron पहले है, that means kingdoms पहले आएंगे, है ना? Kingdoms will like establishment of kingdom will be early than that of India, because of they'll be having advanced tools much before than India. They'll be having axe, plow and weapons, everything much before than India. तो अभी वो हमसे आगे चलेंगे। Like in India, when you see in India, north south से आगे, north south से आगे। Use of iron in the north started before the use of iron in south. It's all race, एक रेस है ना? तो वो याद है ना, लाइफ इज अ रेस, 3 Idiots, the dialogue of that principle, the सहस्त्र बुद्धे, if you remember that movie, one of the best movie बॉलीवुड के अंदर जो बनी है, 3 Idiots। नहीं देखी किसी ने? ओ माय गॉड, ऐसी मूवी को आप छोड़ सकते हो? मैंने एक ही मूवी जिसको 2 बार देखा है, मैंने वो भी हॉल में। Only one movie, yes, virus. Only one movie जिसको I have seen back to back shows like that too, घर में नहीं, कंप्यूटर फोन में नहीं, हॉल में। दिल्ली में एक तो जगह थी रोहिणी में, सस्ते टिकट मिलते थे वहां पे, G3 सिनेमाज हुआ करता था। एट दैट लाइक ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग, सुबह मॉर्निंग शो थोड़ा सस्ता होता था, आई गेस 50-60 रुपए का टिकट होता था मॉर्निंग शो, सुबह 9-10 बजे का, है ना? तो उस समय पैसे बचाने होते थे ना, तो मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, ऐसे होता था उस टाइम पे, है ना? तो बैक टू बैक 2 शोज देखे थे। ओके, सो सुप्रिया अनम्यूट, आपका कोई डाउट है शायद? ये सुप्रिया। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे आईवीसी था या महाजनपद और मगध था, इन सारे अर्बनाइजेशन में क्लाइमेटिक कंडीशन इन सारे अर्बनाइजेशन को कैसे इम्पैक्ट करता था?
क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे इम्पैक्ट करता था, मतलब Yes, और sir. थोड़ा सा डिटेल में जाओ बेस, और क्या पूछना चाहते हो? मतलब जैसे मगध सेंटर में आ गया, जैसे जैसे हम लोग ईस्वी बढ़ रहा था ना, मगध सेंटर में आ गया, आईवीसी वेस्टर्न साइड में था, तो फिर ये लोग पहले ही जब आईवीसी वहां पे सेटल्ड था, तो जो अभी जो अर्बनाइजेशन हुआ था सेकंड, उन लोगों के लिए वेस्टर्न साइड में रहना या फिर वहां पे स्टेबल होना ज्यादा इजी होता। मतलब आप बोल रहे हो यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, यस सर। नॉर्थ वेस्टर्न साइड में ज्यादा इजी होता, यस सर। बट क्लाइमेटिक कंडीशन तो ज्यादा बेटर यहाँ पर थी, क्लाइमेटिक कंडीशन तो ज्यादा बेटर यहाँ पर है। तो सर आईवीसी वाले लोग फिर यहाँ क्यों नहीं आके रहने लग गए थे? क्योंकि उनके पास में एक्स नहीं था, और यहाँ पे तो पूरा फॉरेस्टेड था, यहाँ तो पूरे फॉरेस्ट थे ना। ओहो, ये ट्री कम थोड़े हार्ट्स ज्यादा लग रहे हैं, तो प्लीज कंसीडर दीज एज ट्रीज, ये तो फॉरेस्ट है। तो फिर रिमेंबर, यहाँ तो फॉरेस्ट थे ना, तराई रीजन, यू मस्ट यस हैव, है ना, मैं नहीं बताया था, यू मस्ट, क्या मैं नहीं बताया था क्लास में, यस सर। यस सर। एलुवियल प्लेन्स को हम चार चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वन ऑफ देम इज तराई, यस सर। है ना। वो स्ट्रीम्स जाती हैं, पत्थरों के नीचे चली जाती हैं, एंड देन रीमर्ज हो जाती हैं, रीमर्ज हो, पूरा दलदल हो जाता है वहां पे, मार्शी लैंड, मार्शी लैंड मींस लाइक मोर वाटर मींस मोर वेजिटेशन, मोर ट्रीज, तो कैसे कोई लोग आएगा? सर तो ऐसा बोला जा सकता है कि जैसे जैसे टूल का एडवांसमेंट हुआ था, लोग वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न की ओर बढ़ने लग गए थे। हाँ जी, ये तो मैंने बताया भी था मेरे हिसाब से, आई गेस सुप्रिया, व्हेन लाइक आपका लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे ये स्टार्ट हो गया था जर्नी, लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे स्टार्ट हो गया जर्नी, अभी धीरे धीरे करके जर्नी स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जैसे टूल्स बनेंगे। एक्स, रिमेंबर दैट आयरन एक्स, यस सर। है ना, आयरन एक्स, वो एक्स, दैट एक्स विल बी यूज्ड टू कट दीज फॉरेस्ट्स, है ना। अभी भी in most of the books it will be written, abhi bhi most of the books it will be written that Tarai area is a highly या फिर dense vegetation zone, आप चेक कर लेना। अभी भी this statement you will find in books, Tarai region is a densely forested zone, okay। तो इस this was the main reason, सुप्रिया, ओके सर। ठीक है, ओके। वैसे और एक और बात है ना, क्लाइमेट चेंजेस हैव आल्सो टेकन प्लेस, अभी भी हो रहा है क्लाइमेट चेंज वैसे, है ना, क्लाइमेट चेंज की एक इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग, it was because the use of iron started at a much earlier date in the western parts, most important present day Iran, that was called as Persia, है ना, पर्शिया बोलते थे ना पहले ईरान को, तो उस एरिया में पहले स्टार्ट हो गया, तो लाइक पहले किंगडम्स तो लाइक दे आर मोर पावरफुल, लाइक दे आर इन अ सिचुएशन टू कम एंड अटैक अस, इन्वेड अस। बट व्हाई इन्वेजन? अपने घर में खुश रहो ना, क्यों इन्वेजन करना? व्हाई इन्वेजन? व्हाई यू आर कमिंग एंड अटैकिंग अस? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस? व्हाई इन्वेजन? व्हाई? There are certain reasons. Yes, Janvi, what you're typing, tell me. नेचुरल रिसोर्स रिच एरिया, तो क्या यहाँ से मिनरल्स लेके जाते हैं अपने फैक्ट्रीज में और उसको मिनरल्स में कवर चेंज करेंगे? जानवी, एक्सपेंशन इज वन रीजन, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर इज वन रीजन, दिस इज वन रीजन। The other reason was, if you remember that map of Mahajanpas, okay, I have here. If you see the map of Mahajanpads, जब आप महाजनपद का ये मैप देखोगे, you will find many Mahajanpads here, है ना, यहाँ पे देख पा रहे हो, so many Mahajanpads here, so many Mahajanpads. You can also see some Mahajanpads here, है ना, नॉर्थ वेस्ट में भी आप देख सकते हो, there are some Mahajanpads which are present in the northwestern side. What was happening? यहाँ पर ये जो महाजनपद था, मगध, this was the Mahajanpad, which was actually expanding, all these Mahajanpads, they were fighting amongst themselves, including these,
They were fighting amongst themselves. याद है आपको? ये बात मैंने बताई थी. They were fighting amongst themselves. उसके बाद 4 powerful emerge हो गए. 4 में से बचा like musical chair number 1. Rank number 1 was Magadha. इतना सबको याद है? I hope you remember all these things. We have already discussed these. When you are fighting, remember that story? There was an old man who was at the deathbed and he was having 4 sons, and his sons were always fighting with each other, and he was very disturbed with this. And एक story थी बचपन में, he gave 4 sticks of wood to each of them और बोला कि बेटा तोड़ो इसको. सबने एक आराम से तोड़ दिया. Then इकट्ठा like he gave 4 sticks. अब इसको तोड़ो. That became difficult. यहाँ पर वही story है. Disunity amongst the kingdoms. Fighting चल रही है भाई, race है. Life is a race. तो race चल रही है. There was disunity. Everyone was fighting with everyone else. हर कोई तो fighting में लगा हुआ था. तो यहाँ पे अब united front कैसे दोगे? How you can give a united front in this direction? ये तो बढ़िया है कि यहाँ पे हमारे पास हिमालयाज थे, है ना? हिमालयाज थे. Most of the time in the books you will find that Himalayas acted as a barrier. But history will tell you Himalayas have never acted as a natural barrier. History will tell you Himalayas have never acted as a natural barrier. Okay, there is something called as pass. Supriya, there is something called as passes. Rohtang Pass. Anna, what is a pass? Something like this. Puri chain of mountains, snow-laden mountains. But in between there is a like place where mountains are missing. No mountains. These areas are called as pass. है ना? These areas are called as pass. मैंने स्टोरी भी बताई थी शायद आपको रोहतांग पास वाली. My story of Rohtang Pass, if you remember that. याद है ना? If you remember. So because of these passes, there are several passes. Most important, Khyber Pass. Yes, Supriya, my adventure in Rohtang Pass. So Khyber Pass. So these passes were used to invade. Third point was these places, they were very rich places. याद है मैंने बताया था, we Indians are very hard working people since ancient times. हम बहुत hard working हैं. And when we work hard, we earn. When we earn, we become rich. When become rich, पड़ोसी को प्रॉब्लम होती है. पड़ोसी आ जाता है हमें परेशान करने के लिए. Again, this thing is happening like even now. This thing is happening even now. अभी भी हो रहा है. पहले भी हो रहा था. Basically, like these places are resource-rich regions. And the neighbors, they were greedy. इतने सारे reasons इकट्ठा मिल जाएंगे. अब इतने सारे reasons इकट्ठा मिलेंगे तो क्या होगा, अब वो बताते हैं. In Iran, the first empire, in Iran or Persia, the first empire was Achaemenid Empire. This was the first empire of Persia, Achaemenid Empire. Achaemenid Empire बनाया किसने? The person was like he's called as Cyrus the Great or Cyrus the Elder. Cyrus was the name of the person, founder. Cyrus was the name of the person, founder. So he's Cyrus of Persia. So Cyrus of Persia like will be the first foreign conqueror who will be coming and attacking like in the northwestern places. Cyrus. तो हमें ये नाम याद रखना है. Cyrus will be the first conqueror. He led an expedition towards India, and like
after destroying the other, अपना एम्पायर बनाने के बाद, अपना पूरा एम्पायर बनाने के बाद देखा कि this place, the northwestern parts of India is unguarded. It is unguarded. Disunity is there. Disunity. Already empire बनाया. Empire means it wants to expand. Empire means it wants to expand. This was the time Magad Empire ये अब धीरे धीरे बन रहा था, है ना? अभी ये धीरे धीरे बन रहा था. Like it is in its infancy stage. Okay, so उस time पर this man, like he's regarded as the greatest conqueror of Achaemenian Empire. Greatest conqueror of Achaemenian Empire. He's regarded as, I hope you are jotting down the points, he's regarded as the first conqueror who led an expedition and entered into India. ठीक है, भाई साहब हमारे इंडिया आ गए, साइरस भाई साहब हमारे इंडिया आ गए. When he came to India, he captured one region. Which was the region? Region was Gandhar. He captured Gandhar region. अब ये ध्यान रखना, देखो गंधार रीजन जो होगा ना, where you have heard the word Gandhar. गंधार वर्ड तो आपने सुना होगा मेरे हिसाब से. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड गंधार. गंधार की क्या एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट यू हैव हर्ड? जानवी महाजनपद एंड मृगांक महाभारत. वेरी गुड शुभ्रा. गंधार आर्ट. गंधार आर्ट इज वेरी फेमस. गंधार आर्ट इंडिया की एंशिएंट टाइम में 3 आर्ट बहुत फेमस है. गंधार आर्ट, मथुरा आर्ट एंड अमरावती आर्ट. 3 आर्ट्स वेरी फेमस. गंधार आर्ट, मथुरा आर्ट एंड अमरावती आर्ट. जो गंधार आर्ट है ना, यहीं से ही गंधार आर्ट का ओरिजिन होगा. कैसे? डिफरेंट पीपल आर कमिंग, लाइक गंधार, दिस एरिया गंधार, इट विल बिकम क्रॉसरोड्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स. एवरीवन विल बी कमिंग लाइक फ्रॉम दिस एरिया, और अपना कुछ तो छोड़ के जाएगा. जैसे हम लोग हैं ना, लाइक वेरेवर वी आर गोइंग, अभी आपको पता ही होगा, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर गोइंग टू माउंटेन्स, है ना? Mountains, there's a huge rush in mountains, whether it is Shimla or Manali or Mussoorie. कितना रश है माउंटेन्स में. आई होप यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट. इतना न्यूज तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना? लोगों को होटल्स क्या खाने को नहीं मिल रहा है, रेस्टोरेंट नहीं मिल रहे हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, इतनी ज्यादा रश है. कई घंटे का ट्रैफिक जैम है रास्ते में, है ना? कई घंटे का. सो इफ एनीवन इज प्लानिंग, प्लीज डोंट गो, है ना? अभी प्लीज डोंट गो इफ एनीवन ऑफ यू इज प्लानिंग. And Mussoorie में तो like the administration have found certain COVID positive cases also. So please don't go this time. Like इस बार हम अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी देके मार रहे हैं, कोई एक्स, है ना? कोरोना की 3rd वेव के लिए इस बार we will be responsible. Like 2nd वेव के लिए elections were responsible. This time we will be responsible. First time के लिए China was responsible. Okay, no, वो एक अलग बात है. So गंधार ये क्रॉस रोड बनना चालू होगा. जो जैसे हम देख हिल्स में जाते हैं ना, हिल्स में घूम के आएंगे, शिमला में जाएंगे, देखेंगे ग्रीन वैली. ओहो, ग्रीन वैली में we'll be getting off from our vehicle and we'll be taking some snapshots, and then वहीं पे कोई चाय वाला आएगा and like he'll be offering us tea. तो वहाँ चाय पीने का मजा अलग है. ग्रीन वैली में you are standing in ग्रीन वैली और सोलांग वैली और रोहतांग, है ना? कहीं पे हो आप चाय पी रहे हो. चाय अकेले तो नहीं पी सकते. Like there are few people like me who cannot have only tea. They want something with the tea. And like it's my advice कि चाय कभी only चाय मत पिया करो. If you are having tea, have anything with tea. Either one biscuit or any नमकीन or anything. Like कुछ भी चाय के साथ होना चाहिए. नहीं तो चाय अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालती बॉडी के ऊपर. ऐसा मैंने सुना था, तो मैं अप्लाई करता हूँ. What will be doing? चाय तो पी लिया, चाय का ग्लास और लेस वहीं छोड़ देंगे हम.
अपना निशान छोड़ देंगे. It increases blood pressure. Yes, yes, सिंधुजा, है ना, अपना हम निशान छोड़ के आते हैं, अपना फुटप्रिंट छोड़ के आते हैं. ऐसे ही so many people will be coming from this places, so there will be so huge contact of the artisans का contact होगा. और जब कई different artisans का contact होगा, when there will be contact of different artisans from different places, the net result will be Gandhar art. ऐसे गंधार आर्ट बना था. And this is the reason why Gandhar art is having so many influences of different regions. At least two people in the class knows this. दो जन ने आंसर लिखा है, दो जन को ये बात पता है ना, ये बात दो जन को पता है, शुभ्रा एंड जानवी. तो किस का लाइक इन्फ्लुएंस है ना. सो इसीलिए इन्फ्लुएंस है, बिकॉज different people have come from different parts. तो क्या हुआ, what happened? This man Cyrus, he captured Gandhar region. Already this was the time, ये जो time है 535 BC. I'm talking about 535 BC. I'm in 6th century BC. 535 BC में, remember 6th century BC में 16 महाजनपद आए थे. Apart from 16 महाजनपद, there was small janpads also. There were small tribal regions also. So there were so many tribal regions towards the west of river Indus. All submitted to Cyrus. सबने बताइए क्या करना है ना. All submitted to Cyrus. So Cyrus was the first person, greatest conqueror of Achaemenid Empire. क्या बोलते हैं? Achaemenid Empire or Achaemenid Empire, same thing. Achaemenid Empire or Achaemenid Empire is the first empire of Persia, founded by Cyrus. तो Cyrus ने empire की फाउंडेशन रखी और बोला कि चलो चलते हैं घूमने, इंडिया चलते हैं घूमने. बहुत दिन हो गए कोरोना के चक्कर में, कहीं निकले नहीं है घर से बाहर, फ्रस्ट्रेट हो गया, तो चलो कहीं घूम के आते हैं. तो इंडिया घूमने आया था. कहाँ पे? गंधार, इन द गंधार रीजन. ओके, यहां तक सबको क्लियर है? साइरस क्लियर? Why these people came to India? Is this thing clear? Who was the first conqueror? Who was the first invader? यहां तक सबको क्लियर? आगे चलते हैं. Cyrus was like after Cyrus was succeeded by his grandson. His grandson, he is also called as the Great, Darius the Great. अभी मैं आपको देखो, कभी थोड़ी देर में ना you will be having some feeling of pride very soon. अभी देखना आप, you will be having feeling of pride. थोड़ी देर में आपको लगेगा कि oh wow, हमारे भी क्या बात थी. So Darius, he is also called as Darius the Great. He was the grandson of Cyrus. अब की बार डेरियस से मतलब दादाजी, इस बार मैं जाऊंगा. तो डेरियस भाई साहब आए. डेरियस came to India. He invaded northwest India in 516 BC. अच्छा, ये जो मैं डेट्स बता रहा हूँ ना आपको, these dates, it is possible कि in different books you will find like slightly different dates. So these dates will never come in exam, but this can come कि arrange these people in chronological order. पहले साइरस आया, डेरियस आया, है ना. ये तो आपको याद हो जाएगा ना. सी के बाद डी आता है. इट इज सो सिंपल. सी के बाद डी आता है. जब ABCD याद करते हैं, कितना आसान हो गया. देखो अभी याद रहेगा आपको. ऑलवेज सी के बाद डी आता है. तो पहले साइरस, फिर डेरियस. ठीक है. सो डेरियस, he came to, like, he invaded India. कौन से पार्ट? Again same, northwestern part. He invaded northwestern part, and this time a larger region. This time he annexed Punjab. Punjab west of Indus. यानी पंजाब वाला, पाकिस्तान वाला पंजाब, west of Indus. I'm talking about Punjab, which is located west of Indus. So he invaded Punjab. He invaded Sindh. ये पूरा रीजन यहां से कैप्चर कर लिया. सिंध, पंजाब एंड सिंध. आई गेस मैंने सिंध की आपको स्टोरी सुनाई थी.
सिंध की स्टोरी सुनाई थी शायद मैंने आपको, याद है आपको? दो सिस्टर वाली, टू सिस्टर्स, स्टोरी ऑफ टू सिस्टर्स, नहीं सुनाई सिंध की स्टोरी? मोहम्मद बिन कासिम इंडिया आया, क्या हुआ, एक स्टोरी है सिंध की, चार्ज डायनेस्टी, नहीं सुना? ठीक है, किसी दिन सिंध की स्टोरी सुनाऊंगा आपको, एक बहुत बढ़िया स्टोरी है सिंध की। आज तो नहीं सुना, आज मैं टॉपिक कंप्लीट करेंगे आज पहले। सो ही इन्वेडेड, लाइक ही कॉन्कर्ड पंजाब एंड सिंध, पंजाब और सिंध कॉन्कर कर लिया। कॉन्कर करने के बाद क्या किया? ही मेड दिस रीजन, डेरियस अपने दादा से एक कदम आगे था, he had divided his empire into provinces, है ना, जैसे आज ना states. So he had divided his empire into provinces. When he came to India, already he was having 19 provinces. 19 provinces already थी उसके पास में, ठीक है। During that time, है ना, ईरान में प्रोविंस के लिए जो वर्ड यूज होता था, that was used as satrapy. सेट्रैपी, ये वर्ड याद रखना, ये बहुत आगे तक वर्ड ये रहेगा सेट्रैपी। ये सेट्रैपी वर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बस सेट्रैपी को हम सेट्रैप्स भी बोल देंगे कई बार, सेट्रैप्स। ये वर्ड आपका पीछा कतई नहीं छोड़ेगा। जैसे वो वोडाफोन का एक ऐड आता था, है ना, वेरी वेरी क्यूटी डॉगी था ना, वो पीछे पीछे घूमता रहता था। तो सेट्रैपी आपका ऐसा पीछे नहीं छोड़ने वाला जब तक आप एंशिएंट में रहोगे। So 19 provinces, already he was having 19 satrapies. He made this region as 20th satrapy. इसको 20th satrapy बना दिया, ठीक है, यहां तक क्लियर है? 20th satrapy बना दिया। अब 20th satrapy जब इसको बनाया, तो every satrapy will be paying him something, है ना, he will be earning some revenues, है ना, सही बात है। He'll be earning some revenues from all the places that are under him. तो 20 की 20 सट्रापी हैं, उसको कुछ तो रेवेन्यू मिलेगा अलग अलग जगह से, है ना। वो पूछेगा चलो बताओ सट्रापी नंबर 1 कितना है, सट्रापी नंबर 2 आपका कितना है, 3 कितना है, तो 20 कितना है। The revenue which he got from this satrapy, that was 1/3 of the total revenue of Iran, from like 1/3 of the total revenue. Can you believe it? इससे पता चल रहा है आपको, we were so rich. Now can, like, just digest this fact, how rich we were. 1/3 taxes, 1/3 of the total revenue कहां से आ रहा है? एक सेट्रापी से। आना कितना चाहिए था, है ना, अगर हम जनरल हिसाब से देखें 1/20 आना चाहिए था ना, आ रहा है 1/3। समझ आ रहा है अभी कितने हम, कितने लाइक कितना पैसा था हमारे पास। क्षेत्र, वो भी क्या दिन थे, है ना, वो 7 दिन। ओके, और आज के दिन देख लो आप, अभी हम कहाँ पहुंच गए, है ना, नाउ वेयर वी आर। टाइम की बात है, टाइम ऑलवेज चेंजेस। अच्छे के बाद बुरा, बुरे के बाद अच्छा। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑलवेज रिमेंबर, टाइम इज समथिंग that will always change. सुप्रिया, वेरी गुड। टाइम विल अगेन चेंज, फिर से चेंज होगा, देखते हैं कब होगा, कितने दिन में होगा, ये एक अलग बात है, बट टाइम तो चेंज होगा, है ना। सो इफ देयर इज एनीवन इन द क्लास हु समटाइम feels low, कई बार हो जाता है ना, we start to feel low, कुछ नहीं है जिंदगी में, कुछ नहीं बचा, ये फैमिली में कुछ ट्रेजेडी हो जाए, इकोनॉमिक लॉस हो जाए, फैमिली लॉस, फैमिली में कोई पर्सन का लॉस हो जाए, तो रिमेंबर दैट टाइम चेंजेस। ओके, टाइम चेंजेस। तो इंडिया का एग्जांपल है आपके सामने, टाइम कैसे चेंज हुआ है। तो दिस satrapy, the 20th satrapy, from this satrapy, this paid 1/3 of the total revenues of the empire. Okay, ठीक है। This man Darius जब ये आया तो क्या बोला मैंने, इंडस के वेस्ट का रीजन, है ना, इंडस के वेस्ट का रीजन, दैट मीन्स रास्ते में इंडस दिखा होगा इसको, रास्ते में इंडस दिखा होगा ना इसको, ही मस्ट हैव सीन रिवर इंडस। अच्छा, रिवर इंडस है,
तो he sent a naval expedition. He sent a naval expedition. He sent a naval expedition under one person. His name is SYLLABUS. SYLLABUS. SYLLABUS to explore Indus. To explore Indus. इंडस को एक्सप्लोर करने के लिए एक व्यक्ति को भेजा, उसका नाम था SYLLABUS. किसने भेजा है ये? डेरियस ने भेजा है. Who has sent? डेरियस. तो हुआ क्या है? What we have seen, first of all, Achaemenid Empire बना लिया. किसने बना लिया? साइरस ने बना लिया. साइरस formed Achaemenid Empire because आयरन का यूज पहले स्टार्ट हो गया था, so एम्पायर पहले बन गया. When this empire was established, Achaemenid Empire, so Cyrus attacked India. He invaded India and conquered the Gandhara region. He captured the Gandhara region. All Indian tribes west of the river Indus, like, submitted to him. His grandson Darius came and he annexed Punjab and Sindh and made this region 20th satrapy of the kingdom of or the empire. 20th satrap bana liya, and this satrapy, 20th satrapy, paid 1/3 of the total revenue of the kingdom. This man Darius, he sent a naval expedition under SYLLABUS to explore Indus. ठीक है? To explore Indus. Okay, सबना, this region, ये जो region है ना, ये region बिल्कुल हमारे गुजरात से ऊपर वाला जो ये रीजन है ना, इसको सिंध बोलते हैं. ओके सबना, इसको सिंध बोलते हैं. तभी आपने देखा होगा, लाइक, देयर इज सिमिलैरिटी इन गुजराती एंड सिंधी लैंग्वेज. यू फाइंड सिमिलैरिटी इन सिंधी एंड गुजराती लैंग्वेज इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड. आई डोंट नो, लाइक, और सिंधी आपको पता कैसे लगा कि द पर्सन इज सिंधी? इफ देयर इज सम पर्सन जिसके नाम के आगे नी लग रहा हो, नी, है ना, इफ लाइक देयर इज समवन इसके नाम के आगे नी लग रहा हो, the person will be Sindhi. जैसे जानवी ने बताया ना, मिगलानी. There are so many people. तो कुलकर्णी, मिगलानी, कितने सारे हैं जिसके सामने लाइक नी लगा होता है. So like the people are from Sindh province. तो इंडिया में भी काफी सारे लोग हैं सिंधी. Okay. So say Cyrus and Darius, clear. Darius के बाद में his successor was Xerxes, है ना. बाद में अभी क्या होगा कि देखो, एक एम्पायर ये है, later on another person will make another empire और इस empire को खत्म कर देगा. तो वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा. First of all, what was the influence? What was the influence of this is the empire of Darius. You can see the empire of Darius. देख रहे हो कितना बड़ा empire बनाया Darius ने. Just see the empire of Darius. यहाँ पे ये सिंध, ये सिंध एक्चुअली अभी प्रेजेंट डे सिंध का पार्ट ये भी है, उस टाइम पे अ पार्ट ऑफ सिंध. सो दिस वाज द रीजन ऑफ Darius. नाउ व्हाट विल बी द इन्फ्लुएंस? इसका रिजल्ट क्या होगा? टेल मी व्हाट विल बी द रिजल्ट? अभी yes, before that, one small doubt. Yes. You had told that Ashoka had the greatest empire ever. So, इंडिया में, सब ना in इंडिया India. में, हाँ, इन Okay. इंडिया, हाँ. ये सब ना, योर डाउट? अरे क्या हो गया? सब, अच्छा, यू आर थिंकिंग मैंने बोला था इन द वर्ल्ड. ना, सब ना, वर्ल्ड है, इंडिया में. ओके. So Janvi Singh, Persian features in Indian art like Gandhar. Okay, Janvi, ठीक है. तो देखो पहला इम्पैक्ट क्या होगा? The first impact will be very good, Shubhra, very good. First impact will be boost is the secret of trade and commerce. So boost to Indo-Iran trade. Indo-Iran trade. So boost to Indo-Iran trade and commerce. ठीक है, number one, impact number one.
ओके मुझे कुछ अभी एक याद है, एक और चीज याद आई है बिफोर गोइंग अहेड, भूल जाऊंगा. I had received a mail from you all. I guess that's your all mail ID, batch 19 है ना. आपकी कॉमन मेल आईडी है वो, आप लोगों ने कॉमन मेल आईडी बना रखी है. Oh my God, common mail ID. So see, the thing is कि I am teaching history, ancient, medieval, and world plus art and culture. Also, I'm teaching geography optional. ठीक है, I'm taking these classes. But the thing is sometimes like what happens कि किसी for one subject there are more than one faculty, है ना. For once, I hope you understand that there are for one subject there are more than one faculty member. So sometimes because of like I don't like होता ना कई बार due to like so many things कि like who is teaching whom, कुछ like मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि अभी at present I am teaching you ancient. I'll try कि नहीं आपको medieval भी पढ़ाऊँ, है ना. वर्ल्ड हिस्ट्री जनरली मैं नहीं पढ़ाता हूँ. वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए लाइक देयर इज अनदर फैकल्टी हु इज टीचिंग वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री वो पढ़ाते हैं. आई एम नॉट जनरली टीचिंग वर्ल्ड हिस्ट्री. एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न में पढ़ाता हूँ एंड आर्ट एंड कल्चर एंड दिस ज्योग्राफी ऑप्शनल. ओके, बट समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स कि कौन ज्यादा मतलब किसके पास ज्यादा टाइम है. सो these are some of the things. I hope you understand that. Okay, ठीक है. सिंधुजा, जानवी, चैत्रा, मृगांक, सपना, साहिती, शुभ्रा, सुप्रिया. I don't know like like किसने मुझे who is handling that mail ID. I seriously I don't know like there must be someone who is handling that mail ID. आप में से कोई लीडर होगा आपका एक. I hope so. There must be a leader amongst yourself. We all. तो सबको पासवर्ड पता है, ऐसा है क्या? पासवर्ड हैज बीन शेयर टू ऑल. अच्छा, तो पहले कोई एक जना फ्रेज कर देगा, सब कुछ ड्राफ्ट बना देगा, फिर बाकी के लाइक यू कैन लाइक इफ यू वांट यू कैन एडिट समथिंग लाइक दैट. वन विल ड्राफ्ट एंड विल अप्रूव. एंड हु इज दैट वन दैट हु इज ड्राफ्टिंग? हु इज दैट वन? मुझे लग रहा था, आई न्यू इट. फर्स्ट डे से मुझे लगा था कि सिंधुजा नहीं, सिंधु जी ऐसे ही मुझे लगा लाइक आप में लीडर बनने की कैरेक्टरिस्टिक्स लगी मुझे. नो प्रॉब्स इन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्स इन दैट. दिस इज समथिंग लाइक लीडरशिप एंड इट इज लीडरशिप क्वालिटी, नथिंग एल्स, है ना. सो लीडरशिप क्वालिटी होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. देयर आर सो मेनी ऑफिसर्स हु आर एक्चुअली लीडिंग, है ना. देयर आर सो मेनी ऑफिसर्स हु आर एक्चुअली लीडिंग. इफ यू become IPS officer, तो वहां पे देखना कि आपको कुछ ऑफिसर्स मिलेंगे who will be coming, who will be briefing the team and sitting on that arm chair कि आप ये करना, आप ये कर लेना, ठीक है चलो, ओके जाओ टीम जाओ, बाय थैंक, बहुत बढ़िया करके आओ. There will be a certain category of officers वो बोलेंगे कि I'll be coming with you. Field में भी that person wearing that BP jacket, he will be leading two different types of people. दोनों IPS है, दोनों IPS है, but to different types. So try to be leader. Don't be an armchair bureaucrat, है ना. Don't be an armchair bureaucrat. वो मत बनना, मजा नहीं आएगा, लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाएगी. If you want excitement in a life, adventure in a life, try to be a leader. बड़े मजे आएंगे उसके अंदर, ठीक है. आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी ना, आपको लगेगा कि वाह मजा आ गया, है ना. You'll love it, you'll enjoy it. Okay. So Indo-Iran trade and commerce. Also, there will be impact on culture. Every time you must have heard कि हमारा culture कितना rich है. We have such a diverse culture, है ना. We have such a diverse culture. The people who are staying in metropolitan cities, be it Delhi or Mumbai or Bangalore, like especially the people living in multi-story अपार्टमेंट्स, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, सोसाइटीज में लोग रहते हैं वहां. इफ अगर कोई है ऐसा क्लास में, द पर्सन मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड वन थिंग. कभी कोई सा फेस्टिवल, अगले महीने दूसरा फेस्टिवल, कभी तो एक महीना पूरा होता भी नहीं, बिफोर दैट अगेन फेस्टिवल. कई बार तो लाइक व्हेन वी आर लाइक जब वो कॉन्ट्री करनी पड़ती है ना,
तो कुछ लोग तो बोल रहे हैं क्या है, ज्यादा हो गया इस बार, बहुत ज्यादा हो गया, कितने फेस्टिवल्स में कॉन्ट्री करेंगे? फिर देयर विल बी सम पीपल कि अच्छा जब तुम्हारा फेस्टिवल है तब कॉन्ट्री की, इस बार हमारा फेस्टिवल है कॉन्ट्री नहीं करते हो। है ना? तो कुछ ऐसे भी सिनेरियोज आई हैव सीन इन मुंबई व्हेन आई वाज इन मुंबई। So, but actually, India is a country which is having diverse culture. तो ये कहाँ से इतना cultural diversity आई है? This cultural diversity is different people from different places. So many invasions, so many invasions. कितने invasions हुए हैं? तो culture में भी फर्क पड़ेगा. There is something called as खरोष्ठी script. अगर आपने सुना है ये खरोष्ठी script. Okay, there is something called as Kharoshti script. Kharoshti script. So it is an Iranian script. Yes, Supriya, it is an Iranian script, and like Arabic, इसको right to left लिखते हैं, written right to left, Arabic के जैसे. तो जो Kharoshti script है, हमारे यहाँ पर like you will find many Ashokan inscriptions, especially in the northwestern parts. यहाँ पर Ashokan inscriptions मिलेंगे आपको Kharoshti script में. अभी तो अशोक नहीं आया. He'll be coming in the later stage. He'll be coming in the later stage. अभी तो कितने साल बाकी हैं, कितनी 100 साल बाकी हैं. But later on, this Kharoshti script will be used. Okay, Kharoshti script will be used. So Kharoshti's usage of Kharoshti script, it was the other impact. Supriya is saying exchange of money. Supriya क्या बोलना चाहते हो exchange of money के लिए, बताओ Supriya. Yes, Supriya, unmute. Supriya, unmute and please explain. So like Iranian coins north ईस्ट वेस्टर्न रीजन में मतलब मिला होगा, और फिर सिंध का या नॉर्थ वेस्टर्न रीजन वाला कॉइन ईरान में मिला होगा. लाइक तो उससे क्या पता चलेगा? ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा था. बहुत बढ़िया, इससे पता चलेगा कि ट्रेड एंड कॉमर्स वाज गोइंग ऑन बिटवीन टू रीजन्स, है ना? इससे पता चलेगा, है ना? ओके. और कुछ भी आर्ट्स में अगर हम देखें, अगर हम आर्ट देखें तो आई विल शो यू वन थिंग. यू मस्ट हैव सीन आवर लॉ एंड कैपिटल. आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव सीन लॉ एंड कैपिटल. देखा है लॉ एंड कैपिटल, है ना? सामनाथ कैपिटल सबने देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? दिस लॉ एंड कैपिटल, it has been influenced from the Persian capitals. If you can see inverted this bell shape or lotus shape, ये देख रहे हो? Can you see this? Similar. So this thing is influenced by this thing. This Sarnath capital, ये सारनाथ कैपिटल है, और ये वाला जो कैपिटल है ये हमें मिला है पर्सिपोलिस ईरान में. पर्सिपोलिस ईरान. सो लाइक इट इज लाइक पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस है ना? इट इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड. बेल शेप्ड कैपिटल इन द अशोकन मॉन्यूमेंट्स हैव बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द इंडो-इरानियन कॉन्टैक्ट्स. ओके. उसके अलावा when Ashokan edicts will be there, जब अशोकम पढ़ेंगे we'll be studying some edicts, है ना? major edict, minor edict. तो कुछ अशोका के ऑर्डर्स होते थे, एडिक्ट बोलते थे उनको, अशोकन एडिक्ट्स. सो उसमें एक टर्म है, लिपि. एक जगह पे एक लिपि वर्ड यूज किया हुआ है, लिपि. दिस इज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम इरानियन टर्म दैट इज दिपि. So दिपि इरानियन टर्म, अशोकन में लिपि, तो वो हो गया. देन यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द मोनोलिथिक पिलर्स. ये सारनाथ कैपिटल जिस पिलर के ऊपर खड़ा हुआ है, द पिलर ऑन विच दिस सारनाथ कैपिटल वाज देयर, है ना? पिलर दैट दोस आर मोनोलिथिक. मोनोलिथिक पिलर मींस साहिती. मोनोलिथिक पिलर्स मीन, मोनोलिथिक पिलर्स का मतलब क्या होता है साहिती? Like single pillars or something, which can stand on its single stone. Single stone. The pillar which has been made from single stone.
एक बड़ा सा स्टोन है, इसको हमने कट कर दिया है ना, दिस पार्ट इसको हमने अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, नाउ वी हैव दिस पिलर है ना, दिस ये पिलर हमारे पास बच गया। सो द मोनोलिथिक पिलर्स, ये जो हमारे पास मोनोलिथिक पिलर्स हैं, तो इनके ऊपर जो आर्ट है वो काफी इन्फ्लुएंस्ड है, इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन आर्ट ऑन द आर्ट ऑफ मौर्यंस। जो आगे मौर्यन एम्पायर आएगा, है ना, मौर्यन एम्पायर आएगा, तो वो काफी हम काफी इन्फ्लुएंस्ड है, ओके, काफी इन्फ्लुएंस्ड है। इनफैक्ट द आइडिया ऑफ एडिक्ट्स, ये जो एडिक्ट्स का आइडिया है ना, अशोक ने एडिक्ट्स सारे में अपने पूरा के पूरे एम्पायर में एडिक्ट्स लगवाए थे। सो द आइडिया ऑफ एडिक्ट, इट इज ऑल्सो लाइक Iranian influence. Okay, so many things, but still the most important thing, I feel the most important point is जब Iranians आए, when Iranians came and they found कि oh my God, these places are so rich, इतने rich, तो ये तो बातें वहां पर भी होंगी ना, है ना, अपने उनके ओरिजिनल घर में भी तो ये सारी बातें हो रही होंगी कि वन satrapy it is paying 1/3 of the total revenues, ऐसी बातें तो वहां भी हो रही होंगी। And such type of these things, ऐसा होता है ना, like if in your colony someone buys an Audi, किसने Audi खरीद ली, है ना, किसने अगर Audi खरीद ली, so it will be the talk of the town, at least for some time, it will be the talk of the town। ऐसे कुछ होगा अगर आपकी फैमिली, आपकी कॉलोनी में कोई Audi खरीद ले, या कोई अच्छी कोई हेलीकॉप्टर खरीद ले, सोचो if in your colony someone buys a helicopter, अपनी छत के ऊपर एक हेलीपैड बनवा दिया, don't you think it will be the hot topic of the town? People will be telling this thing even to their relatives। ऐसा होगा, सही बात है, होगा ना ऐसा? People will be telling this thing even to their relatives। पता है हमारी कॉलोनी में एक बंदा है, उसने तो अपने हेलीकॉप्टर खरीद लिया, घर पे उसकी छत के ऊपर हेलीपैड बना हुआ है, भाई हॉट टॉपिक बन जाएगा। ऐसे ही when these people came to India and they found India to be very rich, जब इंडिया को देखा, इंडिया तो बड़ा रिच है, it opened the gates for other foreign invasions। अभी बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि इंडिया इज अ वेरी रिच कंट्री। उससे क्या होगा, अदर इन्वेडर्स, पीछे लाइन लग जाएगी आने वालों की, है ना, पहले आप कीजिएगा, पहले में हो जाएगा, तो पहले हम जाएंगे, ऐसा सा कुछ हो जाएगा, सही बात है। So these are some of the effects of Persian invasions, trade and commerce, use of Khroshte script, monolithic pillars, inscriptions, है ना, ये सब के सब इफेक्ट्स आएंगे पर्शियन इन्वेजन्स के। टेल मी द थिंग्स क्लियर, पर्शियन इन्वेजन्स क्लियर, पर्शियन इन्वेजन्स सी डी क्लियर, डी के बाद था जर्क्स, वैसे डी के बाद जर्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डेरियस के बाद ही वाज सक्सीडेड बाय जर्क्स, नॉट इंपॉर्टेंट, बट सी एंड डी आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो व्हाई दे केम, वेयर दे केम, हाउ दे केम, व्हाट आर द इफेक्ट्स, इतना पता है अगर हमें तो हम आंसर कर देंगे। एंड प्रीवियस ईयर्स में यूपीएससी हैज नॉट टच्ड दिस एरिया, कोई ज्यादा टच नहीं कर रखा। इट्स नॉट लाइक जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जैनिज्म बुद्धिज्म आपने खुद देख लिया होगा, मेनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सो मेनी क्वेश्चन फ्रॉम जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, है ना। हैव एनीवन सीन, देखा किसी ने? चैत्रा, were you able to solve those questions? Chetra, Sindhuja, Shubhra, Sindhuja and Shubhra, were you able to solve those questions? So if you were able to solve those questions, ठीक है, then we are on the right track, है ना, ये तो हम सही ट्रैक पे। Okay, I have taken 2 questions from that only. Okay, and you can do one thing, मैंने आपको पहले ही बताया था, these previous year question papers they can be of immense help। केवल इनको सॉल्व नहीं करना है, इनके जो ऑप्शंस है ना,
use those options, try to read, like take information from these. ठीक है, ये जो 4 ऑप्शंस हैं ये बहुत काम की चीजें हैं ये हमारे, ठीक है। आई होप मैंने ये वाली बात आपके बैच को बता दी थी। ओके, सो नाउ आगे चलते हैं। द नेक्स्ट इज इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर। अब आते हैं अलेक्जेंडर के ऊपर। अलेक्जेंडर इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द वेरी फेमस पर्सनैलिटी इन द हिस्ट्री, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है हिस्ट्री में। तो थोड़ा सा अलेक्जेंडर के बारे में देखते हैं। अलेक्जेंडर की हिस्ट्री देख लेते हैं। अलेक्जेंडर हिस्ट्री को कैसे चेंज करेंगे उससे पहले देख लेते हैं अलेक्जेंडर की हिस्ट्री। सो अलेक्जेंडर, ही वाज बोर्न इन मैसिडोनिया, ग्रीस। मैसिडोनिया में एक जगह है पेला इन मैसिडोनिया, इन द ईयर 356 BC। 356 BC, ठीक है। अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर he ascended to the throne after the demise of his father। इसके फादर पहले थ्रोन पर थे, उसके बाद when he died, the name of his father was Philip। फिलिप की जगह फिलिप्स इज वेरी पॉपुलर। हाँ, द वर्ड फिलिप्स इज वेरी पॉपुलर, एक्चुअली इट वाज वेरी पॉपुलर। अभी तो एप्पल जितना पॉपुलर है ना, उतना ही पॉपुलर एक जमाने में फिलिप्स हुआ करता था। योर पेरेंट्स मस्ट बी नोइंग मोर देन यू फिलिप्स। फिलिप्स के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बड़े इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है कि अलेक्जेंडर के पापा को फिलिप्स का टेप, किसी के घर में बोला टेप रिकॉर्डर था, ऐसा कुछ होता था। वन स्पीकर इज हेयर, अनदर स्पीकर इज हेयर, here there is a cassette player, here there are certain buttons, है ना। यहाँ पर एक हैंडल होता था। स्कूल में कुछ सेलिब्रेशंस होती थी तो we used to take that स्कूल, कुछ फेयरवेल कुछ हो जाती थी, कुछ है ना, कुछ होता था। टेप रिकॉर्डर बोलते थे हाँ उसको। तो most of the time, in most of the like houses it was of Philips। Chitra, you still have? Oh my God, then that is an antique item now। अभी तो एंटीक हो गया वो चैत्र, सही है। ओके, इसका भी अपना अलग मजा था ना, अलग मजा था। एंड एफएम भी होता था उसके अंदर, एएम एफएम, वो सब भी कुछ होते थे उसके अंदर। रेडियो चला लो उसके अंदर, वेरी नाइस है ना, बड़ा बढ़िया लगता था। ओके, तो अलेक्जेंडर के पापा ये टेप रिकॉर्डर लेकर आए थे, अलेक्जेंडर को गिफ्ट में दिया था। So Alexander ascended the throne after the demise of his father Philip in the year 334 BC, है ना। 334 BC में थ्रोन पर बैठ गया। कौन बैठ गया? अलेक्जेंडर बैठ गया 334 में। अलेक्जेंडर was a person, बचपन से सोच लिया कुछ तो बड़ा करना है ना, कुछ तो बड़ा करना है, और डर के आगे जीत है। पी के अपना बॉटल फिनिश करके, एंड he captured whole of Persia। He captured whole of Persia, पूरा पर्शिया को हरा के पूरा पर्शिया को कैप्चर कर लिया। और जब पर्शिया को कैप्चर कर लिया, फिर सोचा कि नाउ माय एम इज टू कॉन्कर इंडिया। बट क्वेश्चन इज, अब अलेक्जेंडर को क्या काम इंडिया के अंदर? अलेक्जेंडर कौन से चचा रहते थे इंडिया के अंदर? Why Alexander wanted to come to India, है ना। अब वो इंडिया क्यों आना चाहता था? दिस टाइम सुप्रिया, ग्रीड से ज्यादा कुछ और था। दिस टाइम रीजन इज डिफरेंट। रीजन क्या है? देयर इज अ पर्सन हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ हिस्ट्री। पता है किसी को? फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस। आई हटा दो, बस आई की जगह ओ रिप्लेस कर दो, हेरोडोटस सुप्रिया। सो हेरोडोटस इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ हिस्ट्री। तो हेरोडोटस वाज अ ग्रीक पर्सनालिटी, ही वाज अ ग्रीक स्कॉलर। उस जमाने में सारे ग्रीक स्कॉलर्स ही होते थे। जैसे इंडिया में था ना, एक टाइम ऐसा था, लाइक द पीपल फ्रॉम कैलकाटा, दे वर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। एक जमाना ऐसा था, दे वर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। देन देयर वाज अ टाइम when most of the IAS IPS officers were from Bihar, East UP and Bihar. There was a time
And I don't know whether you all are aware or not, IAS और IPS सबसे ज्यादा एग्जाम क्रैक करते थे लोग फ्रॉम ईस्टर्न यूपी और बिहार, ठीक है। सो ऐसे ही लाइक उस टाइम में इंटरनेशनली अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द रिनाउंड स्कॉलर्स वर फ्रॉम ग्रीस से, मतलब मैसिडोनिया। So this man Herodotus, father of history, if he is a scholar, if he is a scholar, that means he'll be writing certain things. He will be writing certain things. कुछ लिखाई लिखाई भी करेंगे, है ना? He'll be writing certain things. So अब जब वो लिखता था तो उसने क्या बोला? उसने बोला India is a fabulous land. India is a fabulous. India is a fabulous land. Now, don't you think इस चीज का इम्पैक्ट अलेक्जेंडर के ऊपर पड़ेगा? अलेक्जेंडर उसी के ही देश का है ना? अलेक्जेंडर उसी के ही देश का है। And like one person who is regarded as father of history, he's saying India is a fabulous land, है ना? India is a fabulous land, सबसे बढ़िया देश ये हो गया, इंडिया हो गया, ऐसा वो लिख रहा है। तो इसका तो फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जानवी, Macedonia is a separate country like earlier Greece and Macedonia. Yes, Janvi, that was an empire, na? That was an empire. With due course of time, what like क्या होगा ना, like अलग-अलग separation हो जाएगा। जैसे एक जमाने में हुआ करता था यूगोस्लाविया, है ना? यूगोस्लाविया आपने सुना होगा, आई होप आपको पता होगा यूगोस्लाविया, है ना? बाद में लाइक इट ब्रोक अपार्ट, या यूएसएसआर। Yes, yes. Basically, I was asking this just to ask that we can use them both interchangeably, right? Like हाँ, Macedonia. इस टाइम पे हाँ, उस टाइम पे ग्रीस नाम का एक्चुअली वर्ड नहीं था। Okay, so this man said India is a fabulous land. Now Alexander was a person who was having a strong passion for natural history. Now what is this natural history? ये natural history क्या होता है? He was having strong passion for geographical inquiry and natural history. Is there anyone in the class who has seen the place from where any river originates? कोई है ऐसा? Is there anyone in the class who has seen a place from where a river is originating? यहाँ से, इस जगह से आप देख रहे हो कि oh my God, ये तो यहाँ से start हो रही है। Is there anyone in the class who has seen a river originating? तो प्रियंका तो नहीं देखा। शुभ्रा, साहिती, सपना, मृगांक, जानवी, चैत्रा, नो। जानवी ने देखा रोहतांग पास। जानवी, you have been to रोहतांग पास? जानवी, then no, I said you। अच्छा यार मेरे लिए बोल रहे हो। Sabna always wished to see. So Sabna, if you always wish to see, then you are also having a strong passion for natural history. Okay, Sabna, यही मैं बताना चाह रहा था। Natural history is when you learn through observation, learning through observation. There are two types of learning. एक तो बुक्स पढ़ लो, आपने बुक पढ़ ली कि रिवर ब्यास originate from रोहतांग पास. This is one thing. The other thing is बैग को पैक करो, है ना? बैग पैक करो, दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर पहुंचो, and trust me, you'll enjoy the trip like anything, है ना? अकेले किसी को बताओ मत, है ना? घर वालों को थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेके, and if you are mature enough, बैग पैक करो, पहुंचो कश्मीरी गेट से if you are having funds तो वहां से चलती है वोल्वो चलती है, स्टेट अपना हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की वोल्वो चलती है,
शाम को चलेगी 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे, शायद 2-3 चलती है शाम को। और उसके अलावा सिंपल बसेस भी चलती हैं। अगर किसी के पास फंड्स की कमी है तो सिंपल बस हरियाणा रोडवेज की पकड़ लेना, मजे आ जाएंगे आपको, या हिमाचल के लिए लेना। सुबह पहुंचना 15 घंटा, बस विल बी टेकिंग अराउंड 15 आवर्स टू मनाली। मनाली में जाके एक रूम लेना, रेस्ट वेस्ट करना थोड़ी देर क्या पूरा दिन रेस्ट करना, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गो एंड विजिट रोहतांग। सो जब आप पहुंचोगे, there is a place called as बिसलपुर। there is a place called as बिसलपुर। तो बिसलपुर से मनाली तक रोड के साथ साथ you'll find ब्यास रिवर इज फ्लोइंग, है ना। अच्छी खासी चौड़ी है, but the width is getting like reducing, उसकी width reduce होती जा रही है। in fact more than this, something like this, width reduce होती जाएगी। मनाली से जब रोहतांग जाओगे तब भी ये आपको साथ साथ मिलेगी, river is flowing with you with the road। and ऊपर जाओगे then there you will see Bias is only this much wide, only this much wide। just think of that scene, सोच के देखो क्या मजा आ जाएगा आपको देख के, है ना। तो ऐसा ही था अलेक्जेंडर को भी ये एक it was a quality of that person। he was having strong passion for geographical inquiry and natural history। उसने ये सुना था, he had heard, उस टाइम पे there was no world map like this, जो world map आज है। he had heard that Caspian Sea continued on the eastern side of India। that means कि उसके हिसाब से इंडिया के यहाँ पे there was Caspian Sea, जो सी यहाँ पर है। okay, I'll use that map। this is the empire of Alexander। can you see, this is Caspian Sea। according to him this sea was something like this, so he wanted to see this coast of Caspian Sea। उसको ये पता था कि कैस्पियन सी उधर घूम के जा रही है ना, ये घूम रही है ना, ये ऐसे घूम रही है ना। दिस इज एस शेप्ड सी, आप सबको पता होगा, दिस इज एस शेप्ड सी कैस्पियन सी। वी आर आल्सो हैविंग एस शेप ओशन, अटलांटिक ओशन की भी एस शेप है, ये सी है एक एस शेप का। अकॉर्डिंग टू हिम दिस सी वाज कंटिन्यूइंग टुवर्ड द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, ही वांटेड टू सी दैट। ये देखना था उसको, that was one reason। The another reason was the conditions of the northwestern India। he knew कि यहाँ पर छोटे किंगडम्स हैं, small kingdoms existed here। छोटे से किंगडम्स हैं, कोई बड़ा किंगडम नहीं है, छोटे किंगडम है। most of the time these kingdoms are fighting amongst themselves। some of these kingdoms were monarchies, some of these were republics। कुछ monarchy थे, कुछ republic थे, ठीक है। सो बेसिकली एक तो ये रीजन हो गए, एंड लास्ट में एक रीजन आएगा जो किसने लिखा था, ग्रीड। लास्ट में किसने ग्रीड लिखा था ना, someone had written, I guess, मुझे मिल नहीं रहा किसने तो लिखा था ग्रीड, सुप्रिया। लास्ट में एक रीजन ग्रीड, थोड़ा सा ये भी है, ऐसा वैसा मिल जाएगा, पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ना थोड़ा सा। सो already like he was aware of this thing कि India is having huge wealth and he was attracted to it। okay, so these were the reasons why Alexander invaded India। तो जब Alexander India आया, हुआ क्या? when Alexander came to India, what happened? There were two very famous prince, दो बड़े इंपॉर्टेंट मशहूर प्रिंस थे उस टाइम पर इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में। वन वाज प्रिंस अम्भी। he was the prince of तक्षशिला। the another was पोरस। अब नाउ आई फील पोरस का नाम सबने सुना होगा, है ना, सुना है बचपन में पोरस। he was the kingdom of Pururavas। he was the king of kingdom of Pururavas। the kingdom was present between Jhelum and Chenab।
between Jhelum and Chenab. Now, when this man Alexander came, इन दोनों ने यूनाइटेड फ्रंट नहीं रखा. अम्बी ने तो आने के पहले ही पता चला कि ह्यूज आर्मी इज कमिंग, तो अम्बी ने तो खबर भिजवा दी कि भाई साहब क्या चाहिए पहले ही बता दो, आई डोंट वांट टू फाइट, जो भी चाहिए हम भिजवा देंगे, पहले ही बता दो. तो अम्बी तो पहले ही सबमिटेड ना. तो अलेक्जेंडर ने बोला कि अम्बी बात तो ठीक है आपकी, चलो विल नॉट फाइट, तो you need to recognize my suzerainty, but one thing more I want from you. Ambi ने बोला बताओ सर क्या चाहिए, what do you want? Then Ambi said, you will help me in my expeditions. जो हुक्म मेरे आका, ठीक है. So Ambi तो readily submitted before Alexander. अभी पोरस के पास भी एक एम्बेसडर भेजा गया. One ambassador was sent to Porus. पोरस के पास एक एम्बेसडर भेजा गया. तो when an ambassador was sent to Porus, तो पोरस से पूछा, बोला गया कि आप भी हमारे सुजारिनिटी एक्सेप्ट कर लो, है ना, एक्सेप्ट मी एज योर किंग. खत्म बात. जैसे अम्बी ने क्या ऐसा आप भी कर लो. पोरस ने मना कर दिया. ठीक है, पोरस ने मना कर दिया. पोरस ने नहीं, ऐसा नहीं, आई फाइट. You want to invade? Come on, I'll fight. दोनों के बीच में एक युद्ध होता है. There was a war. The war is famously called as Battle of Hydaspes. Battle of Hydaspes. ये क्या है Hydaspes? Hydaspes क्या है ये? What is this Hydaspes? Anyone? क्या है ये Hydaspes? Hydaspes मैंने पहले बताया था क्या? I don't remember कि अगर मैंने बताया. Supriya Chaitra, no. Okay. So it was the name of river Jhelum. रिवर झेलम. तो रिवर झेलम का नाम हाइडेस्पस था. झेलम तो पता है ना, झेलम इज ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर? झेलम कहाँ के ट्रिब्यूटरी, किसकी ट्रिब्यूटरी है? आई गेस ज्योग्राफी हो गया ना आपका. ज्योग्राफी नॉट yet started or not yet finished? What's the scenario? Going, it started, going on. कहाँ पर हो आप ज्योग्राफी में? Which topic? Climate. Okay. Climatology. तो इंडियन ज्योग्राफी नहीं हुआ. That means रिवर इंडस का नाम सुना है? Have you heard the name of river Indus? River Indus is having 5 tributaries. River Indus is having 5 tributaries. झेलम, चेनाब, सतलज, रावी, ब्यास. ओके. सो ये 5 ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम की, इंडस की. झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज. एंड इफ यू हैव हर्ड इंडस वाटर ट्रीटी, अगर ये कुछ किसने सुना है, इंडस वाटर ट्रीटी इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लाइक टू शेयर द वाटर्स ऑफ इंडस, है ना. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी है. इट वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक एट दैट टाइम. तो दोनों के बीच में एक ट्रीटी है टू शेयर द वाटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो ट्रीटी के हिसाब से जो ईस्टर्न 3 रिवर्स हैं, the eastern 3 rivers, Satluj, Ravi, Beas, India will be using the water of these 3 rivers. Pakistan will be using the water of these 3 rivers. Indus, Jhelum and Chenab, ये पाकिस्तान, और सतलज, रावी, ब्यास इंडिया. ठीक है. तो झेलम का उस टाइम पे नाम हुआ करता था हाइडेस्पस. तो लड़ाई कहाँ पे हुई है? The battle was fought on the banks of
रिवर हाइडेस्पस, इसीलिए बैटल का नाम है बैटल ऑफ हाइडेस्पस। ठीक है, अभी पता चल गया हाइडेस्पस कोई अनोखी कोई नया चीज नहीं है, बड़ा ही सिंपल सी चीज है। झेलम का दूसरा नाम है हाइडेस्पस। ठीक है, ओके। जानवी सिंह, ब्यास, रावी एंड सतलज विद इंडिया। ओके जानवी, बिल्कुल सही बात है। तो व्हेन ही रीच्ड, ठीक है, पोरस ने बोल दिया मैं तो फाइट करूंगा भाई, है ना, आ जाओ लड़ाई करते हैं, देखते हैं, आओ देखें जरा किसमें कितना है दम। सो झेलम रिवर के पास पहुंच गया this man Alexander. So now Alexander is here. The Alexander along with his army, Porus along with his army, he is here. This Porus along with his army, Alexander and Porus यहाँ पर, Alexander यहाँ पर। मॉनसून का टाइम था जैसा अभी चल रहा है, it was a period of monsoons, it was a period of monsoons, 326 BC, 326 BC। तो इंडिया में आया 327 एंड बैटल वाज इन 326। अगली साल में वापस अपने घर, अलेक्जेंडर अपने घर जा नहीं पाएगा, रास्ते में लाइक डेथ हो जाएगी अलेक्जेंडर की, लाइक बीमार हो जाएंगे रास्ते में भाई साहब, और लाइक हिल डाई। तो अलेक्जेंडर, वन साइड अलेक्जेंडर, अदर साइड पोरस। द रिवर इज इन फ्लड्स, द रिवर इज इन फ्लड्स, रिवर में आई हुई है फ्लड। जब रिवर में फ्लड आई हुई है तो अब क्या करें, है अब क्या करेंगे, अब रिवर में तो फ्लड आई हुई है, क्या करेंगे। ऐसा सही कुछ हुआ था जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी हुआ था, मैंने उस टाइम पे भी बताया था आपको, एक दिन मैंने बताया था ना 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, याद है, अब्दाली एंड मराठास, है ना। तो ऐसा से तब वहां पे भी हुआ था, सेम यहाँ पे सिचुएशन। सो फ्लड्स कैसे कैसे करके, लाइक Alexander moved towards northern side and from there tried to manage, he managed to cross the river, और river जब क्रॉस हो गई तो now there was war, अभी वॉर होगा। जब वॉर हुआ पोरस की तरफ से, the most amazing thing that was from the side of पोरस, तो उसको बोलते हैं समथिंग हावड़ा। डू यू नो व्हाट इज हावड़ा? एनीवन इज अवेयर व्हाट इज हावड़ा? ओके आई टेल यू, इफ दिस इज एन एलिफेंट, तो मेरी ड्राइंग पर हंसना मत, मेरे हिसाब से ये एलिफेंट है ना। सो इफ दिस इज एलिफेंट कम, ये कैमिलियन ज्यादा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए इसको एलिफेंट मान लेते हैं। इफ दिस इज एलिफेंट, तो समथिंग ऑन द टॉप ऑफ इट, एक वुडन का एक फोर्ट टाइप का एक स्ट्रक्चर होगा इसके ऊपर, एंड थ्री पीपल विल बी सिटिंग हियर, सिटिंग हियर। दीज थ्री पीपल ये आर्चर्स होंगे, भाला वाला फेंकने का कुछ ऐसा होगा, and one driver will be sitting here, Mahavat. If he is the Mahavat driver, and like these three people, they'll be इसके अंदर बैठे हुए हैं। So this thing made up of wood, what was called as हावड़ा, इसी को हावड़ा बोलते थे। अलेक्जेंडर की आर्मी ने देखा, समझ ही नहीं आया ये कौन सा चीज है भाई, they are carrying forts over the top of elephants, they are carrying forts on the top of elephants। ये देख के पहले दिमाग खराब हो गया। These were elephants, they made havoc in the army of, like in the army of Alexander की आर्मी को havoc create कर दिया elephants ने। जहां पर भी ये जाते थे, like they were having something called as tusks, है ना, ये पता ही होगा ना, दांत होते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और तो जो टस्क्स होते हैं, these tusks were steel cladded। What these elephants were doing, they were so trained कि बंदे को पहले हवा में उड़ाते थे ये, और जब वो आके नीचे गिरता था, they used to crumple the person, havoc create करके रखा था इन्होंने, है ना। All these scenario was being observed by Alexander कहीं पे बैठा हुआ है,
है ना, और वो देख रहा है, ओ माय गॉड ये चल क्या रहा है, चल क्या रहा है. द tallest elephant was used by Porus himself and he was not sitting in the Howdah. वो हावड़ा में भी नहीं बैठा था. He was himself the tallest elephant and बड़े ही ढंग से, बड़े ही courageous तरीके से he was fighting. एक बात तो समझ आ गई अलेक्जेंडर की आर्मी को, till the time we are not able to control these elephants, we cannot win this war. तब उन्हें पता चला, तब उनको वॉर में उनको सीखा, don't fight with these the people who are sitting here. No, don't make them as your target. Make this one as your target and make eye of the elephant as target. As they change their target, जैसे ही टारगेट चेंज हुआ, अभी सीन उल्टा होना शुरू हुआ. The army of Alexander was well disciplined, well trained, बढ़िया आर्मी थी, फ्लैंक्स में आगे बढ़ रही थी, फ्लैंक्स है ना, फ्लैंक्स में आगे बढ़ रही थी, पूरा एक साथ लाइन की लाइन एक साथ, है ना, लाइक समथिंग लाइक दिस 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दिस. एक बड़ा सा, इफ वन ऑफ देम विल बी किल्ड, इसके पीछे वाला इसको रिप्लेस कर लेगा, समथिंग लाइक दिस. सो बड़ी मुश्किल से दे वर एबल टू कंट्रोल द आर्मी ऑफ पोरस. इससे एक बात पता चल गई अलेक्जेंडर को. अलेक्जेंडर लर्न वन थिंग, द आर्मी ऑफ पोरस was very strong and Porus himself was very courageous. अब ये पता था अलेक्जेंडर को कि very soon Porus will be killed. अब क्योंकि हमारी आर्मी अब ज्यादा भारी हो गई है, Porus will be killed. अलेक्जेंडर ने सोचा नहीं, he is such a courageous man, he must not be killed. He is such a courageous fellow, he must not be killed on the field. नहीं. Then he sent his one of his governor कि आप जाओ उसके एलिफेंट के पास जाओ and जाके बोलो कि मैंने बुलाया. I want to talk. I want to rest the war. I want to talk to him. Well, as soon as the person went to Porus ने तो ना आव देखा ना ताव, और उसके हाथ में भाला था और शू शा. The person who had went to talk to him, he had to run like anything to save his life. और आके बोला अलेक्जेंडर को, अरे बाबा कहाँ मरवाने के लिए भेज दिया आपने, है ना, मैं तो मर ही जाता, ये तो पागल हो गया है, पगला गया ये. Porus has gone mad, he has gone berserk. Alexander had to send many people to convince him, but again and again the same scenario was going on. One, like उसका कोई दोस्त था, there was one friend of Porus, उसने बोला कि Porus, I guess you must talk to the person. अलेक्जेंडर से एक बार तो जाके बात कर लो. फिर अलेक्जेंडर को लगा, पोरस को लगा चलो ठीक है. He got down from his elephant, अपने एलिफेंट से उतरा, बोला first of all give me some water. He had some water and remember why he had some water. पानी क्यों, है ना, तो पानी इसलिए, अगर कुछ लोगों ने देखा होगा, like some people are non-vegetarians, तो जब जाते हैं ना, like when we go to buy that chicken or mutton and like वो जो butcher होता है, when he's cutting that, है ना, कलिंग हो रही होती है, तो some of the times if the butcher is a Hindu, so he'll put some drops of water in the mouth of that chicken or like mutton, जो भी वो कुछ goat है. If anyone has observed these kind of things, पोरस ने बोला पहले मुझे पानी वानी पी लेता हूँ, उसके बाद जाऊंगा, पता चलता है वहीं जाके मार देगा मुझे. He drank some water, पानी वानी पी लिया. पानी पीने के बाद में नहीं, जैसे ही अलेक्जेंडर को पता चला कि Porus is coming to meet me, Porus himself rode his horse and Alexander himself rode his horse and came to Porus and asked one question. How do you want me to treat you? बताओ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? ये डायलॉग यहीं के हैं. क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? Porus said, treat me as a king treats another king. अलेक्जेंडर की आंखों से तो आंसू आ गए. ओ माय गॉड, ये कैसा बंदा है, इसको नहीं मार सकते.
बोला पोरस ठीक है, no problems, we'll be stopping the war and I'll be reinstating you at your place. I'll be reinstating you, so you will be my subordinate, you'll be my subordinate and you will rule your place. तो ऐसे ये वॉर हुआ था, बैटल, दिस बैटल इज कॉल्ड एज बैटल ऑफ हाइडेस्पस इन 326 BC. On the spot of the battle, जहां ये बैटल हुआ, on the spot of the battle, Alexander founded two cities. जहां पर बैटल हुआ, Nicaea, N-E-C-A-E-A, Nicaea, and on the other side of the Jhelum, Bucephalus. On one side Nicaea, another side Bucephalus. So these two cities were founded by Alexander on the spot of battle. ये cities find like ढूंढी गई. फिर उसके बाद ये काम हो गया. Now Alexander wanted to enter India. है ना, he wanted to enter India. उसको तो वो देखना था ना, Caspian Sea, है ना. So he wanted to enter India, but his army said, sir, over हो गया sir. We are fighting continuously for the last 10 years, and it's so hot here. It's so hot climate here. साहब हम तो मर जाएंगे साहब, क्या करें साहब, अब नहीं, आगे नहीं जा पाएंगे. According to the Greek historian, a famous Greek historian, Arrian के हिसाब से, in the art of war, Indians were superior to the other nations inhabiting the area at that time. According to the Arrian, it is under inverted commas, quote unquote, in the art of war, Indians were superior to the other nations inhabiting the area at that time, unquote. So उस टाइम पे कौन रूल कर रहा था? Remember, who was the king at that time of Magad? Magad का king कौन था? धनानंद. So Nandas were very strong, और ये बात soldiers ने सुन रखी थी, है ना, ये बात soldiers ने सुन रखी थी. Other nations inhabiting the area at that time. ठीक है, तो ये बात सुन रखी थी. So बाकी soldiers ने बोला कि नहीं सर, we don't want to die here, है ना, हमें अपने घर जाना है. Like there are, like someone is waiting for us at our home. So basically Alexander was forced to retreat in the year 325. लेकिन वापस जाते जाते जितने भी रास्ते के अंदर किंगडम्स पड़े होंगे, all were smashed. Okay, all were smashed. सबको स्मैश करते हुए जब वो वापस जा रहा था, वापस जाते जाते he called his friend. The name of his friend was Nearchus. Nearchus को बुलाया. Nearchus, आपको मुझे I'm giving you one work. ठीक है, बोला बताओ क्या. बोला मैंने ना पहली बार, for the first time I have seen mouth of Indus. Where Indus is meeting the sea, Arabian Sea में जहाँ पे Indus मिल रही है, मैंने वो जगह देखी है. बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के, है ना. मैंने वो जगह भी देखी है जहां यूफ्रेट्स समुद्र में मिलती है. यूफ्रेट्स, Tigris and Euphrates are the two important rivers. Please see these rivers on the map. Tigris and Euphrates, two important rivers. Tigris and Euphrates. बोला मैं आपको एक काम दे रहा हूँ. I am giving you one work. आपको क्या करना है? What you need to do? You need to search for harbors between these two rivers. इन दो नदियों के बीच में, है ना, ये जो नदी है, इन दो नदियों के बीच में जितने भी हार्बर हैं, ये ढूंढने हैं आपको. जो हुक्म मेरे आका. तो दैट वाज नियरकस. टुमारो एक छोटा सा इसका पार्ट रह गया है, इफेक्ट्स, इन्फ्लुएंस, है ना. इसका क्या होगा? इफेक्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट? है तो इफेक्ट काफी सिमिलर से. तो टुमारो विल बी डूइंग दिस इफेक्ट्स and we'll be doing, like, आगे बढ़ेंगे, आगे आएगा Mauryas. We'll be starting with Mauryas. Remember, anytime I can take test of Jainism and Buddhism. I hope you remember that. One Yes, Sabna?
Yes, Samna. So Porus were not killed by Porus Alexander. was not killed. So why the army retreated? They could have gone with the help of Porus also. हाँ, it could have gone with the help of Porus also. लेकिन आर्मी ने बोला कि हमें 10 साल हो गए लड़ाई करते करते, we are like इतने दिन हो गए, एंड क्लाइमेट भी बिल्कुल हमारे जैसा नहीं है ना, क्लाइमेट भी हमारे जैसा नहीं है. सी हियर हिमालयाज है ना सबना, हिमालयाज ने एक काम बड़ा अच्छा कर रखा है इंडिया के लिए, and that is Himalayas don't allow the cold waves to enter inside India, and because of this thing India has a tropical climate. Otherwise the same latitudes here you will find very cold places. इंडिया के अंदर वो नहीं आती. हिमालय ने ये काम बड़ा अच्छा कर रखा है. ओके सब ना, ठीक है. एक ये रीजन था, और एक ये था कि नंदास की आर्मी बहुत स्ट्रांग है. नंदास की आर्मी, इट वाज 5 times the army of Alexander. Again, like according to some British Greek historians, 5 times the army of Alexander. ठीक है. ओके सब ना. एनीथिंग एल्स? anyone anything else? बैटल ऑफ हाइडेस्पास सबको समझ आ गया? Everyone understood Battle of Hydaspes? Okay, then we'll be meeting tomorrow again. Bye-bye. Have a great day. Bye-bye. Professor? Yes, Sindhuja? Since you were talking about the questions about Buddhism that we saw in the previous papers, I checked a question of last year which said Pala period is the most significant phase in the history of Buddhism in India. Enumerate. We have not yet covered. No. ये हम हर किसी के हर बैच में ये क्वेश्चन मेरे पास आता है. जब हम करेंगे ना पालास, Sindhuja, at that time I'll be telling you, है ना, the contribution of Palas in Buddhism. Okay. So Palas हमें करना है. ये एक कन्नौज ट्रायंगल है. Palas, Pratiharas and Rashtrakutas, all three were fighting like anything for just one city, Kannauj. Okay. Okay. Bye bye. Thank you.